ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وقف بائی یوزر اور دوسرے معاملات کا کردار نہیں بدلے گا۔ وقف کونسل اور وقف بورڈ میں تقررات نہیں ہوں گے۔ جوں کا تو موقف برقرار رہے۔ سپریم کورٹ کا عبوری حکم۔ حکومت کو جواب دینے کے لیے 7 دن کا وقت۔ اگلی سماعت 5 میں مقرر۔ وقف قانون غیر دستوری، سپریم کورٹ کے موقف سے پر امید۔ قانون کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ وقف قانون کے خلاف درخواست گزار صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ فیوچر سٹی میں نیکسٹ جنریشن پارک قائم کیا جائے گا۔ 1000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری۔ معاہدے پر جاپانی کمپنی سے معاہدہ۔ وزیر اعلیٰ کا جاپان کا دورہ۔ تلنگانہ کانگریس کا ای ڈی کے دفتر پر احتجاجی دھرنا۔ صدر پی سی سی کے علاوہ کابینی وزراء کی شرکت۔ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے نام شامل کرنے پر شدید احتجاج۔ چھ سالہ بچی پر مبینہ جنسی تشدد، ملزم کے خلاف کیس درج۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وقف ترمیمی قانون سے متعلق صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے بشمول دوسروں کی درخواستوں پر دوسرے دن ہوئی سماعت کے بعد مرکزی حکومت نے جواب کے لیے 7 دن کا وقت طلب کیا ہے۔
मुअज़्ज़ज़ आला अदालत की बेंच, जिसकी क़ियादत चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, हुकूमत को इस मामले पर अगली समाअत तक जूं का तूं मौक़िफ़ बरकरार रखने की हिदायत देते हुए समाअत को 5 मई तक के लिए मुलतवी किया है। चीफ जस्टिस के अलावा बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल थे। मुअज़्ज़ज़ आला अदालत की बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी है कि अगली समाअत तक वक्फ की इमलाक में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अगली तारीख तक वक्फ बाय यूज़र और दूसरे मामलात का किरदार नहीं बदला जाएगा। वक्फ को लेकर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। अगली समाअत तक वक्फ बोर्ड और वक्फ कौंसिल में कोई भी नए तकर्रुरात नहीं होने चाहिए और ना ही वक्फ कवानीन में कोई तरमीम की जाए। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आला अदालत से दरख्वास्त की थी कि किसी भी तरह के अबूरी हुक्मनामा जारी करने से पहले हुकूमत को अपना जवाब पेश करने का मौका दिया जाए। आला अदालत ने तमाम फरीकैन से कहा कि वो आपस में मशवरा करते हुए 5 अहम एतराज़ात को तय करें जिस पर बहस होनी चाहिए। अदालत के पास 110 से ज़्यादा फाइलों का मुताला मुमकिन नहीं है। अदालत ने इस सिलसिले में नोडल कौंसिल के जरिए उन नुकात को तय करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस मौक़िफ़ को वक्फ से मुताल्लिक़ उमूर में एक अहम पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आला अदालत को यकीन दिलाया कि कानून के सेक्शन 9 और 14 के तहत कौंसिल और बोर्ड में कोई तकर्रुरात नहीं किए जाएंगे। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से दरख्वास्त की कि हुक्म इल्तवा जारी नहीं करना चाहिए। अगर यह हुक्म इल्तवा जारी किया गया तो सख्त कदम होगा। मुअज़्ज़ज़ आला अदालत की बेंच ने कहा, हम फैसला नहीं दे रहे हैं, ये एक अबूरी हुक्म होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अपने सामने मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बोर्ड मुकम्मल तौर पर बदल जाए। हम कानून पर फिलहाल रोक नहीं लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने वाले मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को समाअत के बाद कहा कि हम पूरे कानून को गैर दस्तूरी मानते हैं। ये कानून आर्टिकल 25, 26, 15 और 29 की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि JPC के इजलास में भी उन्होंने बिल की मुखालिफत करते हुए रिपोर्ट पेश की थी। पार्लियामेंट में भी हुकूमत की तमाम तरामीम की मुखालिफत की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने जुमेरात की समाअत के बारे में बताया कि उनके कौंसल निज़ाम पाशा ने अपने मौक़िफ़ को सामने रखा। आला अदालत ने हमारे दलाइल पर कहा कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल और स्टेट वक्फ कौंसिल तश्कील नहीं दिए जाएंगे। वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म नहीं किया जाएगा। हमारे कौंसल निज़ाम पाशा इस सिलसिले में और भी दलाइल पेश कर रहे हैं क्योंकि ये कानून ही गैर कानूनी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस कानून के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पता नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ कौंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जापान के दौरे के पहले ही दिन एक अहम मायदा किया है।
जापान की मुमताज कारोबारी कंपनी मारुबेनी से तेलंगाना में सरमाकारी के लिए आमद की जाहिर की है। ये कंपनी हैदराबाद में कई तरक्की पजीर फ्यूचर सिटी में नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने जा रही है। इस ज़िमन में टोक्यो में मारुबेनी कंपनी के नुमाइंदे ने वज़ीर आला से मुलाकात की। सरमाकारी पर तबादले ख्याल किया गया। इब्तदाई तौर पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की सरमाकारी है। इस प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा जो मरहलावारी तौर पर 600 एकड़ अराजी पर आलमी मेयार का इंडस्ट्रियल पार्क होगा। तेलंगाना हुकूमत और इस कंपनी के दरमियान एक माहदा किया गया है। पार्क में जापानी कंपनियों के साथ साथ दीगर आलमी कंपनियों को भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने की सहूलत दी जाएगी। अंदाजा है कि इस पार्क के जरिए 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमाकारी हासिल होगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद न सिर्फ आला दर्जे की गैर मुल्की सरमाकारी को राग़िब करना है, बल्कि तरबियत याफ्ता मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। इस मौके पर वज़ीर आला ने बात करते हुए कहा कि मारुबेनी कंपनी फ्यूचर सिटी में सरमाकारी करने वाली पहली कंपनी बन गई है और यह रियासत तेलंगाना के लिए खुशाइन है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना में तकरीबन 30,000 रास्त व बिलवास्ता मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। रियासती हुकूमत इस कंपनी को मुमकिनात ताउन फराहम करेगी। तेलंगाना की फ्यूचर सिटी मुल्क की पहली नेट ज़ीरो सिटी के तौर पर तरक्की पाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी तेलंगाना में सरमाकारी के लिए पुरजोश है। मारुबेनी कंपनी इस वक्त दुनिया के 65 ममालिक में 410 से ज़्यादा ग्रुप कंपनियों के जरिए मुख्तलिफ शुबेजात में कारोबार कर रही है। इनमें खुराक, ज़राअत, धातें, मादनियात, एरोस्पेस और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। कंपनी के आलमी सतह पर 50,000 से ज्यादा मुलाजमीन पर सरे खिदमत हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना राइजिंग के वफ़द ने जापान के दारुल टोक्यो में वाक़ सोनी कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर का दौरा किया। इस दौरे का मकसद सोनी क्रंची रोल और सोनी दीगर शुबजाती सरगर्मियों के साथ रियासत तेलंगाना की मुमकिना शिराकत के इम्कानात का जायजा लेना था। वफ़द ने सोनी कंपनी के एनिमेशन सेली इदारे क्रंची रोल के नुमाइंदों से तफसीली मुलाकात की, जिसमें एनिमेशन, VFX और गेमिंग के शोबों में हैदराबाद में मौजूद मौक़ों पर बातचीत की गई। सोनी के नुमाइंदे अपनी नई मसनूआत और मौजूदा मनसूबे की तफसीलात भी पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में जदीद तरीन एंड टू एंड फिल्म सिटी कायम करने के अपने विजन पर सोनी टीम के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिटी बैनुल-अक़वामी मेयार की होगी। इसमें एनिमेशन, गेमिंग और VFX के जामे सहूलियात फराहम की जाएंगी। सोनी क्रंची के साथ शराकत दारी तेलंगाना में तख्लीकी सनतों की आलमी सतह पर फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई पर तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से जुमेरात को मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। शहर हैदराबाद में ED के दफ्तर के पास धरना दिया गया। एहतजाजी धरने में सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जोपल्ली कृष्णा राव और दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा, राहुल गांधी की उभरती हुई मकबूलियत से बीजेपी बौखला गई है और ED के जरिए साजिश कर रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी अदानी को अराजियात फरोख्त कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लीडर्स ने कुछ नहीं किया। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर मोदी हुकूमत गैर कानूनी मुकदमात के जरिए साजिश कर रही है। तेलंगाना अवाम को सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए यह धरना दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मकसद इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा है। रियासत में पार्टी मूर्ख इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कहा, गुजरात इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए राहुल गांधी के ऐलान के फौरी बाद नोटिस दी गई। इंतकामी कार्रवाई मोदी हुकूमत कर रही है। मौजूदा वक्त में मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन कौंसल रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी को एक मुकदमे में जेल की सजा हुई है। सोनिया गांधी को जेल की सजा हुई, लेकिन वो जमानत मिल चुकी है। उनकी बहन और बहनोई अभी बाकी हैं और वो भी जल्द जेल जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस इख्तिदार के वक्त जो गलतियां हुई हैं उसकी तहकीकात जारी हैं। बीजेपी को बदनाम करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क को लूटने का अख्तियार कांग्रेस को नहीं है। नेहरू खानदान की तारीख से मुल्क वाकिफ है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत किया जा रहा है। रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा।
मुल्क की आमदनी लूटने वालों के खिलाफ तहकीकात का जल्द खात्मा होना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ 10,000 करोड़ रुपए के स्कैम के अपने इल्जाम की मदाफियत की है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने फिर इस बात का इल्जाम लगाया कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। उन्होंने बताया कि सीईसी की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें HCU की अराजियात में बेकायदियों का इल्जाम लगाया गया और एक आज़ाद तहकीकाती टीम तश्कील देने की सिफारिश की गई। केटीआर ने कहा कि बहुत जल्द 10,000 करोड़ रुपए का रेवंत रेड्डी का स्कैम बेनकाब होने वाला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तहकीकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि HCU की अराजी पर वाक़े एक तालाब को भी रहन रख दिया गया। केटीआर ने कहा कि ऐसे पुलिस ओहदेदार जो आज रेवंत रेड्डी की खानगी फौज की तरह काम करते हुए बीआरएस पार्टी के लीडर्स और कारकुनों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। Now I am demanding BJP, I am demanding Prime Minister Modi. अगर आप तहे दिल से ये चाहते हो कि यहाँ के जो कांग्रेस हुकूमत ने जो गलत काम किया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इसका अगर सच बाहर लाना है, इसमें अगर जो दोषी है उनको अगर शिक्षा देना है, या ये आपका अगर एजेंडा है, आपका अगर इच्छा है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हमारी पार्टी की तरफ से सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कहने के बाद साफ साफ कि यहां पे फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी है, वायोलेशंस हुए हैं, आप क्यों खामोश हो? भारत सरकार क्यों नहीं आगे आती है? भारत सरकार क्यों नहीं आगे आके कोई कार्रवाई शुरू करती है? हमने तो चिट्ठी लिख दी, पूरे डिटेल्स के साथ साथ हर किसी को हमने चिट्ठी लिखी। हमने लिखा हमारे पार्टी की तरफ से RBI गवर्नर को, SFIO को, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, साथ ही साथ हमने CVC को, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, CBI, हर किसी को हमने पूरा डिटेल के साथ, पूरा आधार के साथ हमने चिट्ठी लिखा। अगर वो बस नहीं है आपके लिए, अगर वो काफी नहीं है आपके लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का रिपोर्ट भी आपके लिए काफी नहीं है? अगर मोदी जी और बीजेपी लीडर कार्रवाई नहीं शुरू करते हैं और इमीडिएटली अगर इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं शुरू करते हैं और एक्शन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते हैं, हमें तो और तेलंगाना जनता को यह मानना पड़ेगा कि आप बातों वाले पार्टी है, काम तो कुछ करते नहीं हो। रंगारेड्डी जिले के कोदुकूर मंडल में कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम की तकरीब में अफरा तफरी देखी गई। बताया गया कि इजलास में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार और झड़प हो गई। बीआरएस पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी भी इजलास में मौजूद थी। दोनों ग्रुपों के दरमियान सख्त नारेबाजी का तबादला अमल में आया। बाद में पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की समाअत और उनकी बरवक्त यकसुई के लिए सरगर्म हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली ने कदीम मलकपेट डिवीजन की पानी की टाकी से वाहिद नगर का तफसीली दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम की तरफ से सीवरेज, नई सड़क, स्ट्रीट लाइट्स और पीने के पानी से मुतल्लिक मसाइल से वाकिफ कराया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को अवामी मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से 19 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले वक्फ तरमीमी कानून 2025 के एहतजाजी जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने GHMC के ओहदेदारों के हमरा दारुसलाम के अतराफ अकनाफ के इलाकेजात आगापुरा था दारुसलाम की सड़क पर एक मीनार मस्जिद के अलावा उसके नवाही इलाकों का भी अहाता किया। गरीबी स्कूल्स, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह भी शामिल थे, क्योंकि मज़कूरा जलसे में शुरका के लिए पार्किंग एक मसला है। रहमत बेग ने अवाम से ज़्यादा तादाद में शिरकत की अपील की है। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हैदराबाद से भी यहाँ पर बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम लेक्चरर एक हफ्ते से सरापा एहतजाज हैं। जुमेरात को यहाँ से नुक्कड़ों से कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट पर यहाँ पर पार्ट टाइम लेक्चरर्स ने सेक्रेटेरिएट के रूबरू एहतजाज करते हुए मुस्तकिल करने की मांग की।
वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले रियासती हुकूमत ने तेलंगाना की 12 यूनिवर्सिटीज़ में से खाली जायदादों को पुर करने के लिए जियो नंबर 21 जारी किया था, जिसके तहत 12 यूनिवर्सिटी में से 50% खाली जायदादों को पुर करने के लिए अहकाम जारी किए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स और पार्ट टाइम लेक्चरर अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और उनकी मांग है कि उन्हें पहले मुस्तकिल किया जाए, जिसके बाद खाली जायदादों को पुर किया जाए। जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में एहतजाज कर रहे कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स और पार्ट टाइम लेक्चरर्स को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि काकतिया और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स बतौर एहतजाज पहले ही अपने ओहदों से मुस्तफी हुए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अपील पर संगारेड्डी में बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस पार्टी के कायद आला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नामों को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में शामिल किया गया, जिस पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग सदर जग्गारेड्डी की क़यादत में संगारेड्डी पोस्ट ऑफिस के पास धरना दिया गया। जग्गारेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मजहब के नाम पर सियासत करती है, अवाम इसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर अमित शाह के साजिशी मिजाज इसके पीछे कार फरमा हैं। तेलंगाना के महकमा जंगलात ने हैदराबाद के एक्रिसाट के जंगलाती इलाके में गुज़िश्ता चंद दिनों से खौफ और दहशत का बायस बने हुए चीते को पकड़ लिया है। हैदराबाद के नवाही इलाके में चारशंबे की रात महकमा जंगलात के अमले ने जाल बिछाकर चीते को पकड़ लिया और उसे नेहरू जू पार्क बहादुरपुरा मुंतकिल किया गया। चीते की सेहत पर नजर रखी जा रही है। यह नर चीता 5 से 6 साल के दरमियान का बताया गया है और इस चीते के इलाके में मुसलसल घूमने की वजह से इलाके में सनसनी देखी जा रही थी। अवाम ने चीते को पकड़ जाने पर राहत की सांस ली है। यह भी बताया जा रहा है कि इलाके में एक और चीता गश्त कर रहा है। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 6 साल लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती का शर्मनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। मुतासर लड़की की वालदा ने इस सिलसिले में हिमायतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि 6 साल लड़की की तबीयत गुज़िश्ता 2 दिनों से खराब थी। बुखार और जिस्मानी दर्द की वजह से उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने मासटनेंग के पास एक हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया, लेकिन जब बच्ची से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि फस्तासर के साकिन अब्दुर्रऊफ ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की है और किसी को भी इस बारे में बताने पर संगीन नतायज की धमकी दी है। बताया जाता है कि मुतासर लड़की अपने भाई के साथ ट्यूशन जाया करती थी और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। मुतालबा किया गया कि इस मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में राघवेंद्रा कॉलोनी, अन्नापूर्णा कॉलोनी, कल्याणापुरी कॉलोनी में चारशंबे की रात सारिकों ने मुख्तलिफ मकामात पर सरके की नाकाम कोशिश की है। ताहम बताया जाता है कि चोरी की इस कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। सारिकों के गश्त करने के कुछ वीडियोस और सीसीटीवी सामने आए हैं। मकामी अवाम में एक तरह की तशवीश देखी गई है। पुलिस से इसके बाद तलाशगर्दी में शिद्दत पैदा करने की अपील की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर,
वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ बाय यूजर और दूसरे मामलात का किरदार नहीं बदलेगा। वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड में तकर्रुरात नहीं होंगे। झूठ का तू मौक़िफ़ बरकरार रहे, सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म। हुकूमत को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त, अगली समाअत 5 में मुकर्रर। वक्फ कानून गैर दस्तूरी, सुप्रीम कोर्ट की मौक़िफ़ से पुरुम्मीद, कानून के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। वक्फ कानून के खिलाफ दरख्वास्त गुजार सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। फ्यूचर सिटी में नेक्स्ट जनरेशन पार्क कायम किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए की सरमाकारी, माहदे पर जापानी कंपनी से माहदा। वजीर आला का जापान दौरा। कांग्रेस पार्टी का ईडी दफ्तर पर एहतजाजी धरना, सदर पीसीसी के अलावा काबीनी वज़रा की शिरकत। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल करने पर शदीद एहतजाज। और 6 साला बच्ची पर मुबैना जिनसी तशद्दुद, मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शर्मनाक वाक़या। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।